ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਹਾਣੀ ਹੈ ਸੀ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ? ਯਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੀਡੇ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਊਠ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਏ ਝੀਡੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਡੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਬੁਲਾਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਕਰ, ਨਵਾਂ ਨੌਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਸੌਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ ਬਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਉਂਦਰਾ ਬਾਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਡਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢ ਚੀਮੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਜੀ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਤ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਮੇ ਸਨ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। 15-20 ਘਰ ਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਰਾਬਾਦ ਢਿੱਲੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮੇ ਸਨ, ਚੀਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆ ਜੈਲਦਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੂੰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਹ ਦੀ ਧੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚਬਰਾਂ ਡੇਰਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਗਲੇਲਾ ਲਾਏ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕੜਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸੀ, ਅਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲੇਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਹੀ ਖਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹੈ। मुसलमानों बड़े नेक बंदे सन। ऐसा है जो बुजुर्ग कह रहे हैं। मेरा प्रश्न कुछ और था लेकिन पता नहीं ये समझ नहीं पाए या जवाब नहीं देना चाहते। जो मुझे मेरे बुजुर्गों से पता चला ना, मतलब मेरा से वो कहे थे भाई हमारा भोजन तो अब अपना ना ही बम गिले ले जा करे थे, कच्ची रसद पानी मारते दे दिया करे थे, ब्याह में भी अपना भोजन अलग बना लो और खाओ और अपना ब्याह शादी मनाओ। और जब वो हमारे आया करे थे, क्योंकि उनके खाने में और हमारे खाने में फ़र्क है थोड़ा सा, आप भी जानते हो, तो हम भी उनको कच्चा राशन दे दिया करते थे। अब इन कह रहे हैं कि मोटा गोश्त नहीं खाते थे, तो हो सकता है एक आधा गाँव ना खाता हो, लेकिन मुसलमान इस्लाम में मोटा गोश्त आम चीज़ है और वो लोग खाते भी हैं। और आपको पता है कि वो किस तरह बना के खाते हैं, किस तरह जीव को बरतते हैं। तो शायद इनको प्रश्न नहीं मेरा समझ आया, या वैसे हमारी न्योंदाबाजी थी। और भाई लोगों के लिए दाऊ मिले थे, हमारे मुसलमान आवे थे, हम मुसलमान के जावा थे, और हमारे बाप हमारे बड़े भाई जो है वो कहते 12-12 साल तो कचनी में आंडिया करते। भाई प्रेम था बेटियों में बेटों में, और एक बेटी जो है वो मेरी नहीं, वो सारे गांव की बेटी हुआ करे थी। और बेटी अगर किसी को रास्ते में इतना बताया दादाजी ने कि जय स्टेशन तो आ रहे हैं नहीं पैदल चलते, और बेटी बहू को पैदल आ रही से और मैं घोड़ी पे हूँ, तो मेरा फ़र्ज था कि भाई घोड़ी पे बेटा तू बैठ, मैं पैदल चलूँगा, तेरी लगाम पकड़ कर चलूँगा। आज ये जो है इधर आके, क्योंकि यहाँ का पता नहीं पर्यावरण ऐसा है, जल ऐसा है, या कोई खाना ऐसा है, वो संदेह रहा नहीं। और जो मेरे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने देख रखा है ब्याह शादियों में, मेलों में,
मेले में जाया करते थे। इन हमारे नज़दीक भी सच्चे सौदे मेला मस्या लगा करे थी, ओड़े भी जाया करे थे, घोड़ियाँ बजाया करे थे, बैसाखी भी लगे थे हमारे नौकर में चूड़काने में, बैसाखी पे भी जाया करे थे। दाँव घोड़ियाँ, दंगल, छिंज और कबड्डी कबड्डी तो दाँव होया करे थी भाई। ये कोई फ़र्क ना था ओड़ा है कि यूँ मुसलमान का छोरा से और यूँ सरदार का छोरा से। सारे प्लेयर थे और टीम में सारे मिल के ही खेलिया करे थे। और धाकड़ लोग होया करते भाई, और धाकड़ तरीके से जिया करते, धाकड़ ही खाना खाया करे थे। न्यू किसी को कोई ना थी झिझक, जो आज हम नकली झिझक ले रहे हैं। उरे मैं इससे रोटी मांगूंगा, अरे भूख लग रही है, वो पूछ ले ना रोटी खानी है मेरे हाथ तेरा इस सारे नगूरा में यूँ भी को नहीं तेरा मेल जोल किसी घर में पूछ ले बोबो ए माँ मैंने 2 टूक दे दे। ये हमारी सभ्यता बन गई है। वहाँ ऐसा नहीं था। और लोग मेलों में दाव, और मेरे दादाजी बताते थे कि हमें 2 या 4 मिला करे थी मेले खातर, और छीक लिया करे थे। और पीसे मारी 2 कोई ना खर्च होया करे थी। 1 पीसे की जलेबी लिया करे थे, 3 जने खा लिया करे 3 किलो। जो इन्होंने बात की है कि हलवा दे दिया मेरी दादी ने तसले में घाल के दड़ी, और क्योंकि हमारे वहाँ बड़ा रिवाज था कि चाहे तो भाई समेत कुणबा सारा चूल्हा न्योंद दिया तेरा, चाहे तो छोटे से लेकर बड़े तक सारे न्योंदे पे हो। और चाहे न्यू करिए भी तो दड़ी ले जिए हलवा, उसमें गुड़ के हलवे होया करे थे भाई। वाले को नहीं थे यूँ तेरी सूजी साजी के। और गिले दिया करे थे, बाल्टी में दाल दिया करे थे, सब्जी दिया करे थे, और फुलके जितने मर्जी दरवा लो इसे दे दिया करे थे कि भाई सारा कुड़बा खा के 2-1 फुलके डांगरा तक भी दे दें। तो जो इन्होंने बात की है कि एक आदमी तसले में ले जा रहा था सिर पे धर के ईंट वासा करके, और खेत दूर था, 2 किलोमीटर के दूर होगा। तो वो रास्ते में एक हाथ गिले तसला पकड़ो, दूसरे हाथ गिले गलेला बांटता था और मुँह में पा लेता, बांटता था और मुँह में पा लेता। और जिब वो गया और जिन खातर हलवा ले जाना था उड़े जाके देखा तसला खाली पाया। तो कहने लगे भाई यूँ क्या करा था ना, दिया नहीं उन्होंने हलवा। अगर ना अब भाज का और ले रहा तो जाए कहीं नहीं भेज दे। तो ऐसे मानव सुने देखे, यहाँ भी देखे हैं, यहाँ भी हमारे हुए हैं आदमी दाढ़ी हलवा खा के दाव लंगोटा करके अपना गेहूँ काट लिया करें थे। तो वो कुछ चीज़ें ही और थी, मेरा ये कहना है। शायद इनको मेरा प्रश्न समझ नहीं आया या ये उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसलिए हमारी कौमों में ये फ़र्क नहीं था कि ये मुस्लिम है ये सिख है, और इज्जत थी। तो हमारे गांव में तो नहीं बताया करे थे कि एक ही होया करता ऊँट रखने वाला, पूरे तो बंजारे कम ऊँट वाले ने औड़ा और कुछ खाया करे थे। ये वो गधे रखा किराया करवा करते हैं। तो एक ही घर था सारा जिंडे में, नया जिंडे में, बाकी सारी सिख कौम थी हमारी। बाकी साडी बलादरी ने ताह मोहम्मद ते बड़ी ताह मोहम्मद बड़ी 2 भरा नौकर ने चूड़काना उन्हें नौकरनामा पाया। निशंग मेरी फोटो 50 दी सुपूर्ण सिंह बोलता है, अनोख सिंह का पोतरा, बाबे असरे गया, असरे की औलाद, असरे तो वड्डा दरगाही रस के बैठे हैं असी हैं। वो साढ़े दादे लगते हैं। वो मोटा मास नहीं खाते, ना मोटे मास वाले साग देंगे ने ना दुद्ध लेंदे ने हैं। उन्होंने सक्की बलादरी जी है ना, वो सौंकड़ा नाल नहीं सकते। उत्थे बैठे ने 200-250 घर हैं। ताया जी जब उत्थे खेती करते थे पाकिस्तान में, हाँ। तो कौन सी खेती होया करती वहाँ पे? खेती हाँ। खेती उत्थे मुंजी कमाद हैं कणक, ये 3 फसल होंदे सन साडे। मुंजी कमाद गन्ना ते कणक। नहर का पानी बहुत सी। तो ताया जी बताओगे अब अच्छे से ट्रांसलेट करके। ऐसे जो इन्होंने सरदार जी संपूर्ण सिंह ने बात करी से भाई, ये तो सीधे शब्दों में कह रहे थे भाई जीरी होया कर दी दाऊ, और गन्ना बड़ा मोटा होया करता और एक पतला भी होया करता, जिन्हें और 1465 कहा उसने चीनी हुआ नुकरी, और पोना हुआ करता और लाल पोना काला पोना, बस उसमें गन्ना नहीं रसे रस होया करता। जिब कोल्लू में दिया करते पिचकारी सी लिगड़ा करती भाई। और वहाँ या गेहूँ थी, और गंधम जो थी वहाँ गेहूँ जो थी उसका नाम वडाणक मेरे दादाजी ने मेरे को बताया है। और उसका कद भी 5-5.5 फुट हुआ करता था, सिरटा छोटा सा होया करे था, तूड़ा घना था भाई, दाने थोड़े थे, ओवे दाऊँ थी।
और नहरी पानी भी खुला मिले था हमने, इसी कोई तंगी ना थी और कोई भी। और बाकी कपास भी हुआ करती थी, क्योंकि मेरी दादी के खेस आज भी हमारे घर में पड़े हुए हैं, हाथ के बुने हुए। जिब कपास हो गए थे जिब में तो बुने होंगे। हाँ जी, तो मतलब वो चीज़ें यहाँ हमें शायद अभी तक नहीं मिली। यहाँ पे तो ताया जी 25 क्या कहा केस जो दादी जी ने बनाए हैं। मेरी माता जी गुजर गए हैं, पिताजी गुजर गए हैं। आज भी हमारी दादी के बनाए हुए दुस्से बोलते हैं हम पंजाबी में, और दौर बोलते हैं। दौर का मतलब होता है दो लड़ा, चाहे तले बिछा ले चाहे ऊपर ले ले। एक खेस नीचे हुआ करता, एक ऊपर ले लिया करते, उसको दौर बोला करे थे। तो हाथ के उड़े हुए दरिया और खेस, ऐसा सिस्टम आया कि पानीपत जो इंडस्ट्री है सूत किया भाई हमारे भारत में, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि सिखों के गांव में जाओ और कोई दरी पाटी मिल जाए जिब भी पीछे दे आई हो, आधी मिल जाए जिब भी पीछे दे आई हो। क्यों? क्योंकि इन पे डिजाइन ने खोस लो। हमारी तो चारपाई भी बुनी हुई है ना, वो भी दरियों की बुनतर में बुनी हुई है, खेसों की बुनतर में बुनी हुई है। उसी तरह काला सफ़ेद हरा जो रंग है ना, तो आज भी हमारे घर में मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपनी दादी के हाथ के बने हुए खेस। दादी जी ने बुने थे। हाँ, जो दादी जी ने कपास चुड़िया कर दे, और चुगने वाली उड़े भी है, उड़े भी हुआ करे थी, चुनका उसमें से मोटे मोटे गुल काट लिया कर दे, और एक तुंती की चमक सी आया करे थी, उन्हें बांध के बजाया करते थे। उसको पंजाबी में जमनी बोलते थे। और मोटे गुल चुग के चारपाई पे गाल के उन्हें दाऊँ छेत्या कर दे, एक एक बिनौला अलग हो जाया करता। उसको हाथ की बेलनी से बेला करते, और उसको जो फिर शहर में ले जाकर उसकी पिनाई कराया करते भाई। रूम हल्का और भारी ज़्यादा खुला हो जाता, उन्हें फिर चरखे में पूनी बांट के रात ने हमारी माँ और दादी तो मैंने देखी नहीं है, कात्या कर दी, काट के उसके घोड़े बनाया कर दी, ये गुल्ले से बनाया कर दी, गुल्ले से अटेरा कर दी, अटेर के फिर वो बुनाई वाले को या अपने घर खड्डी लगा के वो बुनती मैंने देखी है। तो ये सिस्टम था इसका बुनने का। ताया जी जैसे ताया जी ने बताया कि कणक गेहूँ वहाँ पे होती थी उस टाइम पे, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप यहाँ पे आए तो उस टाइम पे यहाँ पे गेहूँ नहीं होती थी। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि यहाँ को खेती का सिस्टम हमारे गांव में तो था नहीं, जंगल थे ज़्यादा। हालांकि हमारे गांव के पूर्व में से एक रजबा निकला से इब्बी भाई और पानी आओ है, इब्बी मारे हो है, जीरी भी हो है, गन्ना भी हो है। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि जब हम आए थे तो राजपूतों और जाटों के जो पड़ोसी हमारे गांव थे, और एक तो गन्ने का सीजन था, एक चने को पड़ा रहता, दाऊ कच्चे खा लो, भून का खा लो, और एक सरसों थी हमारे पास। गेहूं जो है बहुत कम हुआ करती थी। और हमारे नज़दीक गांव जो हैं रोडों के, जाटों के, राजपूतों के, वो गोचड़ी बोया करे थे भाई, और गोचड़ी की रोटी खाया करे थे, उसमें दम भी होया करे था। चने ज़्यादा प्रयोग करते थे। गंदम गेहूँ को तो समझे थे बैयर ना आ जाए यार, इन्हें रहन दे मेरे हर के। और जब कोई मेहमान आता था तो हमारे घर में भी मेरी माँ को मैंने देखा है कि ओखड़ में मूली लेके जीरी कूटन लग जाया कर दी, और मैंने मौसी दोरे बिठा दिया कर दी, ले तो मौसी दोरे बैठ, मैं चौल कूट लूँ, रंग वाले चौल बनावांगे। और हम चारों भाई, दोनों भाई कूद्या करते भी, आज ये तो रंग वाले चौल मीठे चावल बनेंगे, आज तो गेहूँ की फुलका खावाएंगे भाई। वहाँ हमारा मुख्य भोजन गेहूँ था। लेकिन यहाँ पे तो तीज त्योहार पे या फिर कोई आ जाता था तब हाँ, मेहमान पे ब्याह शादी में मिला कर दी, और बड़े खुश होके खाया करते भी। आज तो और बारे कहा करते थे कि गेहूँ की रोटी बासी होया करे, रात की पड़ी से खा ले चावले, इसका क्या बिगड़ रहा से। तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन अब ठीक है, अब हम गेहूं के बिना किसी और को खाते ही नहीं है, चावल खाते हैं। चावल भी कई प्रकार के हैं, मोटे से लेकर बारीक तक सारे ही है, आप भी जानते हो। तो आज वो टाइम तो नहीं है, लेकिन उस समय मुश्किल था, पानी भी दूर था। हमारे गाँव थे भाई 3 कुएँ हुआ करते रत्तक में, एक का पानी खारा था, औरत पिया नहीं करते, डांगरा डोगरा ने पिया करे थे। एक तालाब के ऊपर था, उसमें किसी ने बिल्ली घेर दी थी, बिल्ली मर गई थी, उसमें सड़ा दान लगी, उसका पीना छोड़ दिया। तीसरे कुएं से एक से पानी भरा करते। और हम जब 10, 12, 15 साल के थे, हमारे बुजुर्ग कुएं में झांकड़े लंबा पड़ के भी नहीं देते थे। अगना तो डैल के गिर जाएगा, इसमें दहल जाएगा, तेरा दिल काबू नहीं रहेगा, और तारे की तरह जल दिखता था। उसी कुएं में से मैंने अपनी उम्र में अपनी पगड़ी को नेजू बना के पानी काटे से भाई,
ये हालात बहुत बदल रहे हैं, जीव न्यू ना था हमारे तो गाँव। ताया जी कुएं ही खत्म हो गए हैं। ऐसा है जी, अगर आप गिनने लगोगे पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो गया और क्या क्या आ गया है। बाबा आदम से लेके तरक्की तो ये सृष्टि, ये संसार कर रहा होगा, लेकिन पता नहीं मुझे वहम है या मेरे देखो हुए है, इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि पिछले 80-90 सालों में जो चेंज आई है ना, 100 सालों में जो चेंज आई है। माचिस भी हमारे बुजुर्ग क्या करे थे, लाहौर जाकर देखी थी हमने, और बूढ़ा कहने लगा भाई मैं तो लाहौर गया और कोई नई चीज़ देखी भैया, आग देखी, आग इसी काट रखी सौरे रहे, चाहे पगड़ी के बल्ले बांध ले। तो कहने लगा ला कोला उठा कर तेरी पगड़ी में गलना जल जाएगी नहीं। जब माचिस देखी हमने तो कहने लगे यूँ भी आग से जहाज आया करता भाई, हम तो भाग का बाहर लिखड़ा करते हो, जहाज आएगा रहा, जहाज आएगा रहा। हालांकि उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं था। तो मतलब इतनी चीज़ आ गई कि हल बाया कर दे, सुबह उठा कर दे, सरगी वेले घास घेर के बलदा किले जोड़ के किला किला बाया कर दे। इब तो झूठे भी लियो और खेत भी बा लियो, चाहे पाड़े काट लियो, इब तो सिस्टम ही और हो गया है। तो वो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अच्छा ताया जी, जिस टाइम पे पाकिस्तान से आया, दादाजी ने ताया जी ने बताया होगा कि जो यहाँ की क्या अच्छी चीज़ थी जो वहाँ पे नहीं थी पाकिस्तान में उस टाइम। यहाँ की क्या अच्छी चीज़ थी जो आपको अच्छा लगा कि वहाँ से कुछ बेहतर है। आड़ा के मेरे बुजुर्गों ने जो महसूस किया, क्योंकि अगर शिमला में पैदा होने वाला सेब राजस्थान में लगा दिया जाए और सेब का पेड़ बोलता हो, मेरे ख्याल में दाऊ का होगा भाई वो बात तो को ना भाई, शिमले वाले वो जीना तो पड़ रहा है। हाँ जी, तो कुछ ऐसे हालात थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि जैसे जेब खाली करके लूट कूट के हम दाऊ भेज दिए, भाई जाओ अपना करो और खाओ और जंगल पाड़ो। ऐसी बातें, ऐसी कोई हमें कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं मिली हमारे बुजुर्गों को जो वहाँ उनके पास ना हो और यहाँ हो। एक चीज़ विशेष मिली थी, वो आड़े की भाषा और थी, आड़े की भाषा और थी, भैया हमने सीखनी पड़ी। और आज भी मेरे सामने पत्रकार मुद्दे बैठे हैं, वो पंजाबी शायद नहीं जानते, लेकिन मैं हरियाणवी बोल लूँ सू भाई, क्योंकि मैं हरियाणा में रह रहा हूँ। मैंने ज़रूरत थी, मेरे बुजुर्गों ने दाऊँ ज़रूरत थी, इनके बीच में बढ़ना है, रहना है, सेटलमेंट करनी है। तो ये चीज़ तो नहीं मिली है हमें, और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों के पास ना हो और यहाँ आके सुलभ उपलब्ध हो गया हो। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मातृभूमि क्या होती है ये तो हमने मैं बताऊं कि क्या हुआ था, हम सारे जानो सो भाई। मैं पैदा हुआ हूँ 2 साल का वहाँ। इच्छा है, पहले सरकारी नौकरी करके डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना मैं नहीं जा सका। कोई मेरे साथ ऐसी संगति नहीं मिली कि मुझे कोई ले जा के दिखा दे। लेकिन मेरा ही भी जी करे से भाई मेरे गले को बुजुर्ग जाओ जिन्हें हमारा घर देखा हो और न्यू बता दे भी तो इस कोठड़े में पैदा हुआ था, मैं तो उसकी मिट्टी अपने माथे से लगा के चूम लूँगा कि धन्य है ये मिट्टी जिसने मेरे को जीवन दिया है। हाँ जी, इच्छा तो है, लेकिन सरकारों की बंदिशें हैं, राजनीति है, जाना चाह के भी हम कुछ करना चाह के भी नहीं कर सकते। ऐसी मजबूरियां हैं हमारे सामने, सरकारी, राजनीतिक या आर्थिक या जिस तरह की भी लगा लो। लेकिन मन तो भी करे से भाई खड़े ले जे नहीं तो मैं जाकर अपना मातृभूमि उस कोठे ने उस मकान ने जो भी कच्चा पक्का था एक बार माथा टेका हूँ, देखो खुदा कब ले जाता है। ये खबर पाकिस्तान जान दियां सारे के जान दिया। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂਗੇ। ये पाकिस्तान जाए ना सारी खबर जाएगी ताया जी, जाएगी। ता मोहम्मद है वली मोहम्मद है मुसलमान ने साड़ी बलादरी ने नौकर उन्हें अपना नवा पाया चूड़काने मंडी चूड़काना जड़ा ना उदों चढ़ते पासे उन्हें पाया उन्होंने तो निशंग मेरा नाम दस दई सपूरन से वर्द मलूक से वर्द नोक से वर्द साउन से विरक साड़ी वो बलादरी ने साढ़े चाचे बाबे ने वो हैं असी दरगाही के हैं दरगाही के बोलने पैथों हैं उन्होंने सानू साड़ी खबर ता मोहम्मद वली मोहम्मद मुसलमान ने वो मोटा मास नहीं खाते साढ़े वर्गे सिख ने वो साढ़े विचों ने हैं हाँ साड़ी खबर उन्होंने पहुँचानी है तुम। ठीक है ताया जी।
ये जो बात कह रहे हैं, मेरे दादाजी बताया करते थे कि ताब मोहम्मद जी हैं, वो उनके भाई लगते थे बरादरी में, विरक हैं वो भी, आजकल पाकिस्तान में है, नोखर में, चूड़काने में, और उनका एमएलए बनता है वहाँ। तो वो कहते थे कि भाई आपको कलमें पढ़नी पड़ेंगी, और लेकिन आपका बाल नहीं मांगा करेगा कोई, हम आपकी रखवाली करेंगे। लेकिन मेरे बुजुर्ग जो थे वो अपनी सिक्खी को अपनी संभाल के यहाँ ले आए। ये हमारे छोरे भी बाल कटवा रहे थे भाई, और मेरे पिताजी जीवे थे, और मेरे भतीजों ने 2-4 ने बाल कटवा रखे थे। उनको बुला के कहने लगे, अरे हमने पता होता थारी करतूत या होनी से 15-20 साल बाद हम ओढ़े रहे तो गायें गई थी, वो भी खा लेते थे मेरे यार, बाल तो रखते संभाल के। और बाकी मैं दावे से कह सकता हूँ, जैसे दलबीर जी ने कहा है कि ठरी, गामे का वाड़ा, रत्तक और जींडा, मेरे से ऊपर जो 8वीं हड्डी है वो एक है हमारी 4 गाँव की, और वो हमारी बिरादरी है, आज तक भी उनके साथ संपर्क है हमारा। और आज भी जैसे कह रहे हैं उनको जाके बताएं तो वो गले लग के हमारे मिलेंगे कि भाई हमारा खून से है, भाई अपना खून। तो ठीक कह रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। मेरे दादाजी ने एक बार मुझे मिसाल दी कि बेटा और कुछ कर लियो, सरकारी कर्जा ना लियो भाई। मगर दादाजी मतलब के मेरा तो कर्जा के हुआ है, 8वीं-10वीं का विद्यार्थी था मैं, तो इसी नफरत के है अपने सरकारी कर्जे तो, जो सरकार देवा तो ले लेना चाहिए। कहने लगा ना भाई, हमारे बुजुर्गों तय अंग्रेज बांट गया था 18-18 रुपये, और उस समय 18 रुपये एक मिलिट्री के कांस्टेबल की पे थी। क्या खातर भी अपने बड़द ले लो, हड़ ले लो, और ज़मीन में दाने पैदा करो, भी फसल पैदा करो। तो जब हम पार्टीशन होकर राह में आए, राह में और तो बात हमने सारी चुभें थी, लेकिन एक हमें खुशी थी कि कर्जा तो सारा गया, 18 तो गए, ये तो नहीं पूछेगा, अब तो देश ही छोड़ दिया हमने। लेकिन वो 10-12 साल के बाद पाकिस्तान के गवर्नमेंट के आदमी आए और 1800 रुपये लेके धक्के दे लेके यहाँ से गए, इसलिए वो रोकते थे। कर्जे का सिस्टम हमारे में पाकिस्तान में नहीं था, लोग बचे थे, आपस में प्रेम प्यार था। शादी ब्याह पे या किसी फंक्शन पे कर्ज लेना पड़ता है, या कोई नया काम करना हो तब लेना पड़ता है। यहाँ जो आप और मैं ले रहे हैं, और तो भाई पीपे घी के दिया करते देसी के, ले 4 पीपे ले जा, मेरी छोरी का होगा तो दीजिए, दूध ले जा भाई 4 ड्राम ले जा, 20 ड्राम ले जा, 2 दिन में ले जा, 4 दिन में, दाने चाहते हो दाने ले जा भाई, पीछे चाहते हो। हाँ, आपके उचाणे में है, नरवाने में है, जितना भी बढ़िया वर्ग बैठा है, वो जो बढ़िया का काम गिर जाता था, उन्हें 1 ईंट और 1 रुपया दे के जाया करे थे। लाखों की गिनती है उनकी, वहाँ लाख रुपये हो जाया करे थे, लाख ईंट हो जाएगा, दाऊ मकान बना ले और दाऊ अपना बिजनेस चला ले। हमारे तो आपस में जो बार्टर सिस्टम था ना, लेने देने का सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा था। हाँ, मंडियाँ थी, आड़त थी हमारी भी, लेकिन हम न्यू नहीं करा करते। हमारे बुजुर्ग के भाज के लिया भाई 100 रुपये, ये मैंने मौसी के जाना है, चाचे के जाना है, फलाने के जाना है, न्यू कर जाते डरे थे हमारे बुजुर्ग, और इसलिए वहाँ ज़्यादा सुखी थे। और शुद्ध खाना था, शुद्ध पीना था, शुद्ध रहना था, और शुद्ध जीना था। तो कर्जे की बात ऐसे है। तो तय ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੂੜਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਬਿਰਕਾਂ ਦਾ। ਚੂੜ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚੂੜਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰਕ ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚੂੜ ਸੀ, ਚੂੜ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ठीक है। तो ताया जी आपने जो बातें सुनी, मैं ट्रांसलेटर हूँ, वैसे नेगे में इनका चाचा हूँ मैं, संपूर्ण सिंह जी का, मेरा चाचा लगता है। तो ट्रांसलेट ही कर रहा हूँ। जिब थब भाई बिलोनी सी गल हो गई नहीं, यो पेज तो लंबा होएगा थारा यो, तो इसमें न्यू करियो, बखण सा राख लियो, लस्सी से खंडानी पड़े पी लियो, खंडाइयो ना बैठो। हाँ जी, तो आपका प्रश्न क्या था? ताया जी मैं ये कह रही थी कि दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? दर्शकों को सबसे पहले तो मीडिया वालों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे आदमी को इतना समय दिया, और ऐसे बुज़ुर्ग जो कोई सुनने में आपको लग रहा है ऊंचा सुनता है इनको,
उनको भी समय दिया। और संदेश ये है कि किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा है, कभी भी भूतकाल काल पे गर्व ना करो और भविष्य के बारे में सोच के अपने दिमाग के पुर्जे ना घसाओ भाई। के होगा कल है कौन जाने से, ये तो खुदा जाने से के होगा के नहीं होगा। तो वर्तमान जो है, वर्तमान में हमें अपना दुख सुख बने हुए हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी जो दर्शक देख रहे हैं बने हुए हैं। सबसे बड़ा जो भाईचारा है हमारा, जो हमारा बंधुत्व है, जो हमारा प्रेम है इस इलाके से, वो नहीं खोना चाहिए। मुश्किलें आती जाती रहती हैं किसी भी वर्ग पे, कोई भी वर्ग हो। तो मेरी तो आपको यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना जो भाईचारा हमारे बुजुर्गों ने इतने साल में यू बना रखा से भाई, इन्हें ना खोइयो। यू एक बार टूट गया यू को नहीं बनता भाई। रहीम जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर नहीं मिले, मिले गांठ भरी जाए। तो इसमें गांठ ना आने दियो। खुदा करे आप खुशियों जियो, खाओ, दूधों नहाओ, पूतों पढ़ो और भाईचारा को कायम रखो। मैं आपका अति धन्यवादी हूँ। तो ताया जी ने, दोनों ताया जी से, ताया जी की तो बात कम समझ में आई थोड़ी ही, क्योंकि ताया जी सारी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जो जीत सिंह ताया जी है वे हिंदी भी बोल लेते हैं, हरियाणवी भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं। तो उनकी बातों में और भी मज़ा आया। और ताया जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, आज हम यहाँ हैं कल पता नहीं कहाँ होंगे, तो भविष्य की चिंता ना करें, आज में जिए। और कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर रखें, आपका क्या कहना है जो आपने ताया जी की बात सुनी, और तस्वीरों को दबाकर शेयर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।